initially that motivation to join defense forces, it came from a documentary of Indian Naval Academy which I watched on television. तो वहां से मोटिवेशन आया कि डिफेंस फोर्सेस की तरफ मुझे ट्राई करना चाहिए। और जब मैंने और उसके मतलब उसको स्टडी करा इस पूरे फील्ड को, तो पता चला कि घर के पास पे एक स्कूल है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जहाँ से काफी अच्छा वहां से रिजल्ट आता है हमेशा एनडीए के लिए। Hello everyone. So good evening to everyone. I'm very happy today because we'll be having an interaction with All India Rank 2 Kushagra Durgapal for NDA150 course. And I'm very proud to share that he's my student. I got a chance to mentor him for SSB. He belongs to Haldwani, a student of Sainik School Ghorakhal. Commonly they are known as Ghorakhali, right? So today I want him to interact with you all. I mean, though I'll be interacting with him, but see, as I always tell, whether somebody is a successful candidate or even if somebody didn't get success, we always get learning from some or the other person. But if we especially talk about him, since he is all India rank 2, that means he must have scored good in SSB as well as in written exam also. So I'm sure that all the ND aspirants will definitely get some or the other learnings from him. So all yours, Kushagra. We want that you share your journey right from the beginning, how you joined Sainik School Ghorakhal, right? What inspired you to go for there? And since Sainik School Ghorakhal itself is a different world, right? Huge exposure. So I even want you to throw light on that also, because I'm very sure that there's a very important, what you can say, contribution of Sainik School Ghorakhal in your success, because it has what you can say, you know, the upbringing. I'll say I'll especially use the word upbringing. Actually, वो परवरिश ही कर रहे, because you're away from the parents, right? So they used to take care as a child. It's not just a school, I'll say, right? तो the authorities who are there, they are acting as your parents. जो भी learning मिली, कैसे help मिली, क्या school है, फिर how did you, because a very special thing is you are पहाड़ी है ना, इधर उत्तराखंड से, generally उत्तराखंड people are quite inclined for army. Subsequently people go for air force and suddenly navy, because when you came to me, even first question I asked, if you remember that, why you navy, why you want to go for navy, जब तूने बताया था कि वाइजैक में आ रही है एसएसबी मेरी। तो I Yes want sir. you to start with everything right from the scratch, है ना, all yours. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मतलब बेसिकली सब कुछ तो कवर कर ही दिया है। तो इनिशियली दैट मोटिवेशन टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, इट केम फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी व्हिच आई वॉच्ड ऑन टेलीविजन। तो वहां से मोटिवेशन आया कि डिफेंस फोर्सेस की तरफ मुझे ट्राई करना चाहिए। और जब मैंने और उसके मतलब उसको स्टडी करा इस पूरे फील्ड को, तो पता चला कि घर के पास पे एक स्कूल है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जहाँ से काफी अच्छा वहां से रिजल्ट आता है हमेशा एनडीए के लिए। So this was basically how it all started. Then in class 8, I started preparing for Sainik School Ghorakhal entrance examination for getting admission into Sainik School in class 9. And then I cracked the examination, and then in class 9 I got admission in Sainik School Ghorakhal. अब सैनिक स्कूल में मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन गेटिंग इनटू एनडीए, right from class 6 or class 9, doesn't matter when you join, but the motivation is basically everything about National Defense Academy. All the seniors, all the teachers, all the OBAs, the old boys of or the alumni of Sainik School, they come to the school. They motivate each and every cadet of the school to join National Defense Academy or any other academy of Indian Defense Forces for becoming future officers. तो वहां से मतलब काफी ज्यादा हेल्प होती थी। सीनियर्स भी मतलब पहले से ही बताते थे, जैसे क्लास 9 में जब मैं था तो कहते थे कि ऐसे जितने भी तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे डिबेट हो, क्विजेज हो, या अगर असेंबली में बोलने का भी मौका हो, उसको भी मतलब ग्रैब करो। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, ताकि तुम्हें मतलब वो एक्सपोजर मिल सके पब्लिक स्पीकिंग का, और कॉन्फिडेंस तुम्हारा डेवलप हो सके पहले से। उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी मोटिवेट करते थे सीनियर्स। तो दैट वाज ऑल बेसिकली हाउ इट स्टार्टेड। देन एज टाइम वेंट बाय, तो थोड़ा प्रेशर भी पड़ता रहा कि सैनिक स्कूल में तो यार इंडिया तो जाना ही पड़ेगा ना। तो दैट्स ऑल
the initial story. Then when we reached class 12, so like my only aim of life was National Defense Academy. कुछ भी करके इंडिया तो जानी है. Then I started preparing for written examination. I would say मेरा थोड़ा sorted था क्योंकि academically I was a good student. But for SSB, I had to work a lot upon myself. क्योंकि इनिशियली जब हम क्लास 12 में आए थे तो मैं उतना मतलब बोल नहीं पाता था और थोड़ा मतलब पब्लिक में बोलने से भी थोड़ा शर्माता था. बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी एन अपॉइंटमेंट. तो आई वुड से बीइंग एन अपॉइंटमेंट इन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल इट वाज द बिगेस्ट प्लस दैट आई कुड गेट इन माय लाइफ. क्योंकि जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन करने को मिलता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी मुझे मिली, तो उससे मतलब वो क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप हुई. Which appointment you were? सर स्कूल एकेडमिक्स का. अच्छा, एकेडमिक कैप्टन. पढ़ाकू बंदा है, पढ़ा लिखा. एकेडमिक्स कैप्टन. ओके, गुड. सो एकेडमिक्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एवरीथिंग आई वुड से. तो और उसी की वजह से मतलब ऐसा भी था कि चल रिटर्न तो मेरा सॉर्टेड है, सो आई कैन वर्क ऑन माय एसएसबी पार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्लास 12. तो ऐसा भी था कि मतलब जो भी असेंबली वगैरह होती थी तो मैं उसमें ही वॉलंटियर करने की कोशिश करता था. फिर डिबेट वगैरह में बोलने की काफी कोशिश करता था कि चांस मिल जाए तो सही है, अच्छा है. सो दिस इज बेसिकली द होल थिंग. देन व्हेन द रिजल्ट केम आफ्टर दैट, कोचिंग करने के लिए तो जा नहीं था. तो हमारे एक सीनियर है देव भाई साहब. तो देव भाई साहब ने हमें बताया था कि तुम यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो. आपके बारे में मतलब बेसिकली बताया था कि मैं यहाँ गया था जब लॉकडाउन वगैरह था. तो देन हम लोगों ने प्लान करा कि कैसे कैसे मतलब किस हिसाब से जाएंगे. तो देन अलॉन्ग विद अंकित वंश, तो इन सबके साथ मैं भी आ गया आपके Here I पास. want to mention you all the name that he is talking about. Dev Pratap. He is one class senior to him. तुम्हारा एक साल senior था ना? बिल्कुल So सर. he also came to me in Indore for SSB Workshop. Abhi he's in NDA. And to all the people who are listening to us, I would like to highlight one more thing. Although मैंने एक वीडियो एक्सपीरियंस जो है अमन सिंह का भी शेयर किया था, उसमें भी आई टोल्ड इज अ स्कूल कैप्टन ऑफ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल. वहां भी मैंने मेंशन किया है. यू वुड हैव नोटिस वन थिंग दैट कुशाग्र हैज यूज्ड वन वर्ड भाई साहब. You know, when he was taking name of Dev Pratap, he used the word भाई साहब. मैं इंडिया के 12 डिफरेंट सैनिक स्कूल्स में गया अभी तक ट्रेनिंग देने फॉर एसएसबी. आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम सैनिक स्कूल नगरोटा, देन अमरावती नगर, ऐसे करके मैं टोटल 12 सैनिक स्कूल्स में जा चुका हूँ. Every सैनिक स्कूल हैज गॉट देयर ओन ट्रेडिशन. दे हैव गॉट सम यूएसपी इन सम और दी अदर मैनर, राइट. अगर मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बताऊं आपको, जो मुझे इतने कैडेट्स से पता लगी है और बहुत ही जबरदस्त है. इनकी क्लास का अगर कोई एक क्लास सीनियर भी है, या मान लो somebody इज वेटरन, है ना, मान लेते हैं 30 years बैक भी वो स्कूल से पास आउट हुए थे, और ये लोग जब मिलते हैं तो ये उनको अंकल या सर नहीं बुलाते, ये उनको भाई साहब बुलाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ कुशागर विल बी मीटिंग विद सम वेरी सीनियर फ्लैग ऑफिसर ऑल्सो, राइट, आई मीन ब्रिगेडियर और अबव टू दैट, तो ये उनको शायद सर बुलाकर नहीं बोलेगा, उनको भाई साहब करके बुलाएगा. एम आई करेक्ट कुशागर? है ना. यस सर, यस सर. तो ये एक इनके यहाँ की बहुत ही जबरदस्त चीज जो मुझे पता लगी. यू नो, आई व्हेन आई गॉट टू नो, आई फेल्ट मोर लाइक इज अ योर स्कूल एंड स्टूडेंट्स आर स्टिल इन टच विद द काइंड ऑफ एन इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर. बहुत बढ़िया चीज थी ये, बहुत ही बेहतरीन. तो जितने भी सिविलियन सुन रहे हैं और सैनिक स्कूल के लोग, यू नो, भाई साहब इज समथिंग वेरी वेरी फेमस अबाउट द पीपल फ्रॉम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल. या कुछ कैरी ऑन. Yes, sir. So basically this was how I prepared. तो हम लोग आपस में काफी डिस्कशंस करते थे, ग्रुप डिस्कशंस करते थे स्कूल में कि ताकि थोड़ा मतलब बोलना सीख पाए. फिर बट विदाउट कोचिंग एवरीथिंग इज लाइक डायरेक्शनलेस. तो मतलब एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट तो थी हमको. तो देन स्कूल में भी हमारी एसएसबी कैप्स हुई थी. तो उसमें हमारे स्कूल के दो सीनियर्स थे, कोमोडोर शलभ श्रीवास्तव और कर्नल डॉक्टर एसपी सिंह. तो उन्होंने भी मतलब काफी हेल्प करी थी हमें, मतलब एक डायरेक्शन देने के लिए कि हाँ हार्ड वर्क किस तरीके से करना है. बट स्टिल आई थिंक समथिंग वाज देयर व्हिच आई लैक्ड. सो आई केम टू इंदौर टू अंकितपाल सर फॉर दिस कोचिंग. कोचिंग भी क्या मतलब एसएसबी वर्कशॉप, this would be I think a better term for that rather than coaching. So in those 10 to 14 days, the biggest thing that I got was I got to know my strengths,
the task in which I was good. Like for example, जैसे group discussion वाला part था, in that I was quite good. और interview वाले part में I was good. But at the same time, I also got to know about my weaknesses. Like psych वाला जो part था उसमें I had to work a lot. इंडियन नेवी के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है तो वो मेरे पास काफी कम थी, तो उस पर मुझे वर्क करना था. तो थ्रू दिस एसएसबी वर्कशॉप आई गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ कि मुझे यहाँ पर वर्क करना है, यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सही हूँ, और अगर मैं थोड़ा और मतलब हार्ड वर्क करूँ तो इसमें मैं काफी अच्छा कर सकता हूँ. सो आई गॉट अ डायरेक्शन टू वर्क ऑन माई सेल्फ. तो यहाँ ना मतलब टू ऑल इवन आई वुड लाइक टू हाईलाइट that Kushagra was also telling not actually coaching workshop it is. We try to aim that we don't give any ready-made answer to anyone because वो यार एक coaching बन जाता है. The officer sitting there probably is having service more than your age, so they can catch you very easily if you're trying to bluff or trying to play some I'll say I will specifically use a word dirty politics, right? दो इसका मतलब कुछ और होता है बट यहाँ कई बार आई ट्राई टू फिट दिस वर्ड ऑल्सो, राइट? कई लोग चतुर चालाक बनने की कोशिश करते हैं, हम तो बेवकूफ बना देंगे वहाँ असेसर को, राइट? नोबडी कैन catch us, but trust me, you are caught very easily, right? So that is why we keep it as a workshop where I can give feedback for everything, whether we go for psych, interview and GTO, because we cover all three segment. And हर बच्चे के ऊपर ना इंडिविजुअली हर बच्चा एक यूनिक है यार. देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ. यू टॉक अबाउट अ पेन, तो एक पायलट पेन होता है, आपने सुना होगा. एक वो अपन छोटे होते वो पेन यूज करते थे, क्या बोलते हैं, इंक पेन. देयर इज अ बॉल पेन. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पेन अच्छा है ये वाला नहीं अच्छा है. हर पेन की अपनी अपनी जगह यूटिलिटी है. इट माइट हैपन दैट यू आर वेरी ऑफन यूजिंग पायलट पेन, बट कहीं इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पायलट पेन है ही नहीं आपके पास, आपको इंक पेन से काम चलाना है या बॉल पेन से चलाना है, तो ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, काम डेफिनेटली होगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर इज नो वन स्पेसिफिक kind of a personality what SSB is looking. There can be thousand of permutation in combination. हमारे को ऐसा लगता है ना कि भाई मैं तो इंग्लिश अच्छी है तो मैं तो रिकमेंड हो ही जाऊंगा, या some people after graduation are thinking since I am preparing for civil services so my knowledge is very good, मैं तो रिकमेंड हो ही जाऊंगा. ऐसा नहीं है. इट्स a cumulative assessment. और आई हैव इवन सीन लोग इंट्रोवर्ट कैंडिडेट्स भी रिकमेंड होते हैं यार, क्योंकि देखो SSB is looking if you are having a trainability factor. If on in the given time if you can be trained they will definitely take you. तो इसलिए हम छोटी बैच रखते हुए आई कैन ट्राई टू फिगर आउट एट वेयर दिस पर्सन इज लैकिंग. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अभी इसने कुशागर ने भी आपको जिक्र किया है, शेयर विद यू ऑल, कि जब हमारा डिस्कशन हुआ इवन व्हेन आई वाज सरप्राइज व्हाई नेवी कुशागर, तो हम डिटेल, अब मैं कुशागर को ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि कुशागर अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई यू वांटेड टू जॉइन नेवी, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट, व्हाई नॉट आर्मी और एयरफोर्स, तो आप ऐसा आंसर दे देना. दिस बिकम्स ए कोचिंग. ऐसा पॉसिबल नहीं है. व्हाट हैपेंड दैट व्हेन ही केम, ये जो कुछ नाम बता रहा है वंश अंकित के साथ जो इसके क्लासमेट्स हैं, तो जब 4-5 दिन हो गए थे ना, पूरा दिन मैं भी इनसे डिस्कशन करता रहता हूँ, कहीं ना कुछ बात होती है. सम ऑफ देम आर वेरी सीरियस, सम ऑफ देम आर कैजुअल टॉक्स. तो बाय द एंड ऑफ 5th-6th डे आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, राइट? तो मुझे पता लगा कि आई गेस यू पीपल हैड अ विजिट टू एजिमाला आल्सो, आई गेस नेवल एकेडमी की नहीं. क्या कुछ हुआ था. आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी, या डॉक्यूमेंट्री का कुछ देखा था कुछ, यू टोल्ड मी अर्लियर, है ना? सर तो डॉक्यूमेंट वाला तो that डॉक्यूमेंट्री, motivation came from documentary. Yes, sir. या. तो when he told me then I helped him how to build that particular thing for this kind of question. I mean आंसर कुशागर का ही था, बट मैंने उसको हेल्प आउट किया दैट हाउ यू प्रेजेंट दैट. सेम गोज विद साइक आल्सो. लाइक मैं किसी को ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि ये पिक्चर आई है तो आप ये स्टोरी लिख देना. दैट बिकम्स अ कोचिंग, दैट इज यूजलेस. I need to identify that if you have given a so and so response on so and so picture, so why you have given that? Is it really matching with your personality, or what inferences this psychologist will be getting out of you, or how he is going to assess you? तो ऐसे नहीं कर सकते यार कि मैं आपको एक रेडीमेड स्टोरी दूंगा. पिक्चर आपके सामने, आप स्टोरी लिखोगे बिकॉज जो आपने रियलिटी में लिखी, जो आपके दिमाग में आया है, उसका आपकी लाइफ से कनेक्शन होता है. माई जॉब इज ओनली टू करेक्ट यू हाउ टू प्रेजेंट दैट थिंग, राइट? सो yes, even I will agree that nowadays just getting up and going to the SSB somewhere, directionless तरीके से जाना is also not a very right approach. Although आज से 10-15 साल पहले, to be very very honest, I'm telling to everyone, इतना ट्रेंड नहीं था कोचिंग्स का, right? What I also can openly say this thing.
बट अब थोड़ा अच्छा ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी गाइडेंस, नॉट टेकिंग कोचिंग, तो यू कैन नॉट गेट रिकमेंडेड. इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. एंड लेट मी अश्योर यू पीपल ऑल कि आज से अगर आप 50 साल बाद भी देख लोगे तो लोग वो भी रिकमेंड होंगे जो कहीं कोचिंग नहीं लेते हैं. इट इज स्टिल अ फैक्ट, राइट? सो आई एम नॉट एट ऑल, और इधर कुशाग्र इज नॉट एट ऑल ट्राइंग टू से यू पीपल कि भाई आप तो कोचिंग लो तो ही रिकमेंड होगे. नो, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. It's just a thing that since the world is changing rapidly, competition is increasing, you need to be updated with the what people are doing, right? अच्छा कुशाग्र, अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं. आई जस्ट व्हेन वर योर एसएसबी शेड्यूल किस मंथ में थी? आई फॉरगॉट एक्चुअली. सर जनवरी 22nd to 26 जनवरी. 22nd to 26 Jan, है ना? एंड व्हेन यू केम टू बिल्कुल इंदौर? सर, इन जनवरी itself on 4th January I came to. एक्चुअली कुशाग्र मेरे पास थोड़ा सा लेट आया था बिकॉज इसके जो फ्रेंड्स थे वो पहले ही आ चुके थे. एंड आई एम श्योर वो स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही थी इसलिए तो कुछ तो बहाना बना के चटकी करके आ गए थे. वन ऑफ देम इज Yes, स्कूल कैप्टन अमन सिंह, वेद प्रकाश, कनिष्क. तो he came to me little late, but yes, it was a great to have you here. And कुशाग्र, दो तीन बातें बता यार. दो यू वर एन एकेडमिक्स कैप्टन, राइट? बट कभी तो सैनिक स्कूल में कोई गदर किया होगा, है ना? मतलब कोई ऐसा मोमेंट दैट, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सैनिक स्कूल ना, कि सैनिक स्कूल में ये होता है वो होता है, तो मुझे ऐसा लगता है यू आर टॉकिंग व्हाट यू कैन से बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में. आई वांट यू टू बी लिटिल कैजुअल कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमेशा याद रखना चाहेगा अपनी सैनिक स्कूल जिंदगी का, 6 साल जो घोड़ाखाल पहाड़ों में बिताए हैं. सर. और फिर ज्यादा ऐसे तो मतलब सही भी नहीं रहेगा, लेकिन जैसे होली का इंसिडेंट मैं बता सकता हूँ कि जैसे होली में हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जो भी क्लास 12th होती है तो आफ्टर दैट ऑल सेलिब्रेशन इज ओवर, सारी मतलब होली वोली खेल ली उसके बाद तो क्लास 12th जो होती है वो स्कूल से भाग के स्कूल के पास ही मतलब एक झरना है, वाटरफॉल टाइप है, तो वहां पर जाती है. तो सिमिलरली हम लोगों ने भी ऐसे ही करा था कि पूरी क्लास एक साथ जो मेन गेट था वहां से भागी थी वाटरफॉल के लिए. सो दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस आई वुड से. और मतलब काफी सालों तक का तो पक्का याद रहेगा ही कि वहां से हम लोग मतलब भागे जा रहे हैं, उधर से पीटीआई पीछे से बाइक लेकर आ रहा है और सब पहाड़ों के अंदर घुस गए थे. उसके बाद फिर एक पहाड़ से घुस के दूसरे से निकल रहे हैं और ऐसे करके वहां तक मतलब पहुंच गए थे झरने तक कैसे भी. और फिर स्कूल में ऐसा हो रहा था कि यार गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ. फिर 2 घंटे बाद फिर सब वापस भी आ गए थे. नहीं तो तो ये ऐसा बड़ा इंटरव्यू में पूछा था ये क्वेश्चन इस बार कि एनी नोटोरियस एक्टिविटी, मिस्चीवियस एक्टिविटी यू डिड इन स्कूल? मुझसे तो नहीं पूछा था, लेकिन मेरे साथ एक और बच्चा था सैनिक स्कूल का, तो दूसरे सैनिक स्कूल का था, तो उससे सैनिक पूछा था. स्कूल? सैनिक स्कूल लखनऊ. अच्छा, लखनऊ. लखनऊ. ओके, ओके, ठीक. अच्छा, व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वो बता. सर माय फादर इज अ बिजनेसमैन, मतलब एक सिंपल शॉपकीपर है, और एंड माय मदर इज एन आंगनवाड़ी वर्कर अच्छा, यहीं पे इन. यस. तो रिकमेंडेशन के बाद आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी हैप्पी. यस सर, श्योर. एंड लौंडा से रिकमेंड नहीं हुआ यार, ऑल इंडिया रैंक 2 है. तो ऑल इंडिया रैंक 1 से कितना रह गया? यू वर टेलिंग मी दैट डे ऑन कॉल. कितना पीछे रह गया? नहीं, डिफरेंस तो काफी था. आई थिंक इट वाज अराउंड 50 मार्क्स, ऐसा कुछ डिफरेंस था. दैट वाज क्वाइट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आई वुड से. ओके, नहीं बट ठीक है यार, ऑल इंडिया रैंक 2 इज आल्सो नॉट लेस देन एनीवन. इट्स एंड आई एम श्योर यार, घोड़ाखाल के भी इतिहास में सुनहरे पन्नों में तेरा नाम हमेशा चमकता रहेगा, राइट? बिकॉज व्हेन आई हैव शेयर्ड योर फोटोग्राफ ऑन व्हाट्सएप कि भाई कुशाग्र दुर्गापाल वाज माय स्टूडेंट, गॉट दिस, तो बहुत सारे घोड़ाखाल के ऑफिसर्स ने, इवन आई विल टेल यू वन वेरी सीनियर ऑफिसर नाउ सर्विंग एज अ ब्रिगेडियर साहब, ही ऑल्सो टेक्सटेड मी यार. उन्होंने एक ही मैसेज डाला था मेरे को व्हाट्सएप पे, यार आई एम वेरी प्राउड दैट AIR-2 दिस टाइम इज फ्रॉम माय स्कूल. तो वो जो तुम लोगों का सैनिक स्कूल वाला बॉन्डिंग होता है ना, वो भी एक बहुत जबरदस्त चीज है. ब्रिगेडियर साहब डोंट नो पर्सनली हु इज कुशाग्र, but since he's from my school, so the especially he took out a time and messaged me. That shows a great camaraderie among you people, right? Great. अच्छा कुशाग्र, थोड़ा सा SSB के बारे में बता, क्या क्या हुआ था और कैसे था. और आई इवन टेल टू पीपल, जो मैंने तुम्हें वर्कशॉप में भी बताया था, कि लोग GTO में कभी कभी सोचते हैं कि फट्टा बल्ली में आइडिया नहीं आएगा तो रिकमेंड नहीं होंगे, या लोगों को लगता है GD ओनली मीन्स शाउटिंग एंड स्पीकिंग, इवन इफ यू आर स्पीकिंग इलॉजिकल, ऐसे कोई थॉट्स होते हैं, बोलना है ज्यादा से ज्यादा, विच आई टोल्ड यू इट इज रॉन्ग.
In GD, it is not important how much you speak, it is important how much valuable you speak. तो आई वांट यू टू कवर ऑल बेसिक्स. और अपन ने जो इंटरव्यू के 75-80 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उनमें से क्या क्या पूछा गया, व्हाट वर योर आंसर्स, है ना, बिकॉज इन लोगों को भी लर्निंग मिलेगी कुछ ना कुछ आउट ऑफ योर थिंग्स. ऑल योर्स. तो स्टार्टिंग विद द इंटरव्यू पार्ट, तो आपने मतलब ऐसे ऑलमोस्ट 75 to 80 क्वेश्चंस तो लिखवाए थे, और आई वुड से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम दो 75 to 80 क्वेश्चंस, और वो भी डायरेक्टली. और मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि मैं भी मतलब बाद में सोच रहा था कि यार इतने डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं. लाइक एक क्वेश्चन आपने लिखवाया था कि यू आर द स्कूल एकेडमिक्स कैप्टन, सो व्हाई यू कुड नॉट बिकम द स्कूल कैप्टन, और उन्होंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा था. सो मतलब आप पहले ही कहते थे कि अगर तुम्हें क्वेश्चंस पता है और उनके बारे में तुम एक बार आंसर सोच लो, अपने दिमाग में सोच लो, रटो मत या याद मत करो, लेकिन सोच लो कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, ये सब मतलब रीजंस थे, तो आंसर देना काफी ज्यादा इजी हो जाता है. तो आई हैड ऑल दोस पॉइंट्स इन माय माइंड समवेयर, और उस टाइम मैंने काफी ज्यादा मतलब आंसर इजीली फ्रेम कर लिए थे इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. जो 10% क्वेश्चंस बचे थे वो भी आई वुड से दे वर मोस्टली जीके रिलेटेड क्वेश्चंस, जीके या करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस. तो वो तो वैसे भी कोई नहीं बता सकता, बट आई वुड से दैट सेट ऑफ 75 to 80 क्वेश्चंस, इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल सेट. देन रिगार्डिंग जीटीओ, तो जीटीओ मतलब मैं भी एक पहले आपके पास आने से पहले एक और कोचिंग गया था, तो उधर पे काफी जीटीओ की मतलब बहुत ही हाइप थी, बहुत ज्यादा, कि आइडिया देनी पड़ते हैं, रस्सी 100 प्रकार की उन्होंने रस्सियां सिखाई थी कि ऐसे ऐसे रस्सी बांधो, ये वो है. एंड आई वाज वेरी मच कंफ्यूज, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है. एंड आई वुड से कि जब मैं आपके पास आया था, तो बिगेस्ट रीजन वाज दिस ओनली कि मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए था जीटीओ जीटीओ वाले पार्ट का, कि मुझे इसमें करना क्या है पट्टा बंदी. सो द ओनली द ओनली एडवाइस दैट यू गेव वाज कि कुछ और करो ना करो, सबसे आगे चले जाओ ग्रुप में, जो आगे 3-4 लोग होते हैं जो आगे कर रहे होते हैं उसमें घुस जाओ. तो मैं भी मतलब जब एसएसबी हुई, तो आगे 3-4 लोग होते हैं, पीछे 3-4 लोग होते हैं, तो मैं हमेशा आगे 3-4 वाले लोगों में था, और कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा था, ग्रुप की हेल्प कर रहा था, कभी सामान मतलब कोई अपना आइडिया लगा रहा था तो उसको हेल्प कर रहा था, और ऐसे करके मतलब एक आध आइडिया मेरे पास खुद से भी आ गए. तो दिस वाज अ वेरी वैल्यूएबल एडवाइस कि अपने एफर्ट्स मारते रहो, क्योंकि जो पीछे वाले 3-4 लोग थे उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनके पास आइडियाज थे, लेकिन वो पीछे से बोल रहे थे, तो उनके आइडियाज वैसे भी किसी काम के थे नहीं. अब तुम पीछे से मतलब पीछे वाले की कोई सुनता नहीं है, जो आगे होता है उसी की सुनता है. तो दिस वॉज अ वेरी वैल्यूएबल एडवाइस कि आगे जाओ, एफर्ट्स मारो, और जितना होगा उतना करो. एंड एट लास्ट आइडियाज डू नॉट मैटर, रादर वो जो कंडक्ट होता है, जो आपने कहा था वो 40-45 मिनट तुम अपना कंडक्ट कैसा कर रहे हो, कंडक्ट कैसा रख रहे हो, कैसे एज अ ग्रुप मेंबर तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो, सो दैट मैटर्स मोर. सो दिस वाज समथिंग व्हिच आई रियली फेल्ट जब मैं वहां पे टास्क कर रहा था जीटीओ. सो दिस रियली हेल्प्ड अ लॉट. उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट, तो उसके लिए मतलब आपने एक चीज कही थी कि स्पीकिंग दो प्रकार की होती है. एक तो इंडिविजुअल स्पीकिंग, कि इंसान मतलब अपना अलग से बोल रहा है लेक्चरेट में या फिर इंटरव्यू में, और एक होती है ग्रुप में बोलना. तो ग्रुप में बोलना और इंडिविजुअली बोलना मतलब दोनों काफी अलग अलग चीजें हैं. तो मैं इंडिविजुअली जब बोलता था, तो वो तो मेरा काफी सॉर्टेड था पहले से, मतलब मैंने प्रैक्टिस वगैरह भी करी थी, लेकिन ग्रुप में बोलने में मुझे काफी प्रॉब्लम आती थी कि मतलब पूरी भीड़ जब बोल रही है तो उसके बीच में अपने पॉइंट कैसे दे. नॉलेज वाला पार्ट आई थिंक मतलब मैं पहले से 10th 11th से थोड़ा कोशिश करता था कि मतलब जीके वगैरह पढ़ते रहूं, तो नॉलेज वाला पार्ट भी मतलब थोड़ा सॉर्टेड था. तो उससे मुझे काफी हेल्प हुई कि जब आप प्रैक्टिस कराते थे मतलब दिन में 3 या 4 जीडी, तो तब मेरा इंप्रूवमेंट काफी जल्दी जल्दी हुआ. तो एज एवरीबडी सेज कि अगर तुम्हें नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस खुद मतलब खुद से आता है. तो आई थिंक वन शुड गो फॉर नॉलेज इन दैट पार्ट. जीडी वाले जो पार्ट होता है उसमें सिर्फ मतलब चिल्लाने से तो कुछ होता है नहीं, और खाली तुम मतलब एक तरह से अपना भी और ग्रुप का भी टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हो. बट इफ यू हैव दैट नॉलेज देन यू कैन इजीली स्पीक. और एक और चीज जो आपने कही थी कि हर चौथे या पांचवें बंदे के बाद बोलना है, तो दैट वाज आल्सो समथिंग व्हिच आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट एज मच एज आई कैन, कि जैसे ही हर चौथा बंदा बोल रहा था उसके बाद आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द जीडी, पुट सम वैल्यूएबल पॉइंट जो कि मतलब जीडी को प्रोग्रेसिव मतलब आगे ले जाने में हेल्प करे, rather than just speaking anything. So this was basically the three things in GD, interview, and GTO. मतलब जीडी में टू ऑल फ्रेशर्स आई से, जो कुशागर आपको बता रहा है ना, उसमें आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू पीपल. 20 मिनट्स का जीडी होता है. इनिशियल 3 to 4 मिनट्स यू विल फाइंड दैट पीपल आर गिविंग पॉइंट्स.
शुरू का 3-4 मिनट जो होता है ना, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, उसके बाद ना पॉइंट ही नहीं आता। पर जीडी में बोलते तब भी है लोग। व्हाट हैपन इज दैट पीपल स्टार्ट रिपीटिंग द पॉइंट्स। बट इवन जीटीओ जीटीओ तो चलो छोड़ो यार, आपको खुद समझ में आने लगता है कि अब हमारा पूरा ग्रुप ना रिपीटिंग कर रहा है, पॉइंट का रिपीटेशन मार रहा है यार, किसी के पास कुछ है ही नहीं, राइट? सो you need to ensure that throughout your GD you must try to bring some valuable points. मतलब वो मास्टरपीसेस क्या चला था। हाँ सर, मास्टरपीसेस तो मतलब एक, रामबाण, हाँ वो मतलब वाला रामबाण। मास्टरपीसेस वाली वो जो टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई थी ना, मतलब आई कैन टेल हाँ कि कोई भी जीडी का टॉपिक आ जाए वो 20 मिनट तक आदमी पॉइंट्स ले आए। पर पता है, अभी पिछली वर्कशॉप की जो हुई ना, और इनफैक्ट कल से भी चालू हो रही है एनडीए 1511 की, मतलब माय पॉइंट इज कि मास्टरपीसेस सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता है आदमी का, ही हैज टू प्रैक्टिस ऑल्सो, बिल्कुल। बिकॉज वो कहते हैं ना, पगड़ी किसी को देखकर बांधना सीख ली, बट खुद को जब तक बांधने का प्रैक्टिस नहीं करेगा बंदा, इट विल नॉट ब्रिंग परफेक्शन। सेम इज विद द मास्टरपीसेस। It sounds to be very simple to implement, but when a person comes for implementing in the GD, it is not a cakewalk. वो बहुत प्रैक्टिस से ही चटकी बना उसके लिए। बट वो भी एक रामबाण टाइप ही है, बिल्कुल सही। ठीक है ना? Yes, sir. मतलब गुड। पॉइंट्स ट्रेन नहीं होते उसकी वजह से लास्ट तक, हाँ। कुछ अच्छा, कुछ होता एक, ही है बोल। मैं सभी को यहाँ एक चीज और बताऊंगा कि यार देखो, आई आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीवन और समथिंग। ठीक है, ऑल आर इक्वली गुड, माय एम इज नॉट टू से एनीथिंग रॉन्ग नेगेटिव फॉर एनीवन, but to all those people who couldn't go to any coaching, couldn't take any guidance XYZ, है ना? अगर आप जीते ग्राउंड पर नहीं गए हो, आप एसएसबी जा रहे हो, वेदर यू गोइंग फॉर एनडीए एंट्री, यू गोइंग फॉर सीडीएस और एनी XYZ एंट्री, राइट? तो ये मत सोचना कि यार तुम लोग किसी से कम हो या तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज लेस। ऐसा नहीं होता, उसमें होता प्रॉब्लम पता है क्या है? हम खुद अपने आप को अंडर प्ले करने लगते हैं, हमें लगता है यार शिट, मैं तो ग्राउंड में प्रैक्टिस ही नहीं करा, मेरे को तो फलाना ढिमकाना कैंटिलीवर फलक्रम आता ही नहीं है, ये वो, मैं तो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। मतलब आई हैव प्रूव्ड दिस पीपल, वी आरसेल्फ हैव गॉट आवर ओन जीटीओ ग्राउंड। इंदौर में हमारा अपना खुद का जीटीओ ग्राउंड बना हुआ है, पीजीटी एचजीटी कमांड टास्क। I made this thing prove to this all boys that even if you don't give a single idea in PGT, still there is a high probability you can get recommended. It's not a game of just giving an idea. इनफैक्ट अगर आप में से कोई ऐसा लगे भाई फाइनेंशियल इशू है या कुछ है, यू जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल गिव यू एन एक्सेस ऑफ अवर जीटीओ ग्राउंड, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके नोन में कोई ऐसा बंदा है हु इज नॉट फाइनेंशियली साउंड एंड वांट्स टू एक्सेस, मोस्ट वेलकम फॉर दैट। पर कभी अपने आप को अंडर प्ले मत करना, बिकॉज ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये कोई सिंपथी नहीं है, या ये एक सांत्वना टाइप नहीं है कि, या मोटिवेशन भी नहीं है। एक्चुअली इट इज अ फैक्ट। इट्स नॉट अ गेम ऑफ जस्ट फट्टाबल्ली एंड ऑल। मतलब your maximum what you can say selection has already happened till GP. After that, GTO will be taking a break of 10 minutes. So rest remaining all are confirmatory यार। मैं ये नहीं कहता इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इट्स नॉट जस्ट अ गेम ऑफ अट्टा पल्ली। अब आप बोलो और क्या क्या है, तो इस पर अपन किसी ने एक दिन में डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा। आई गो ऑन जीटीओ ग्राउंड एंड आई show you out the structures and I'll show you how the task is getting conducted and how GTO is assessing and what you're supposed to do. But yes, if you're getting an idea, do give input also in your group, right? चलो, दैट्स ग्रेट। कुशाग्र, एक चीज और बता यार, कोई ऐसा क्वेश्चन था इंटरव्यू में जो तू आंसर नहीं दे पाया? सर मोर और लेस तो ज्यादातर क्वेश्चंस कर लिए थे आंसर, लेकिन हाँ जैसे एक क्वेश्चन था कि मतलब उन्होंने पूछा था कि वाई वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस, तो उसमें मैंने ये सब मतलब लंबा सा आंसर उसका होता ही है, तो उसमें एक पार्ट ये भी था कि रिगार्डिंग स्कूल सीनियर्स की, जो हमारे स्कूल के एल्यूमनाई है वो काफी बार स्कूल की विजिट पे आते हैं और मोटिवेट करते हैं सब। तो मैंने ये बोला और तभी उन्होंने एकदम से क्रॉस क्वेश्चन करा कि अच्छा, सो नेम some of the alumni of your school who are at top ranks। तो मैं एकदम से खुश हो गया कि हाँ चलो, मैंने तो 12-13 याद करे। बट देन ही सेड फ्रॉम इंडियन नेवी। अब अच्छा। इंडियन नेवी से मुझे एक ही पता था इंडियन नेवी से, दैट इज वाइस एडमिरल एचसीएस बिश। तो उन्होंने फिर उनके बारे में और पूछा कि उनकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ पर थी, या फिर वो उनके बारे में और कुछ बताओ, तो मुझे थोड़ा बहुत ही पता था। और उस पर उन्होंने मतलब और क्वेश्चन पूछे, तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। तो आई थिंक दैट वाज समवेयर आई शुड हैव वर्क, और उधर पे मतलब काफी शायद गलती गलती सी थी वो। आई हैव अ स्टूडेंट क्षितिज उपाध्याय, वो आर्मी टीएस के लिए भी रिकमेंड हुआ था और नेवी 10+2 बीटेक के लिए भी। बट अभी वो आर्मी टीएस के लिए ओटे गया हुआ है।
उसको भी ऐसा नेवी में एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, ऑल तो पूछ लिया था कि जैसे ही वो आया उसको बोले अच्छा तुम्हारे, यू आर फ्रॉम सैनिक स्कूल रीवा, बोले यस सर। बोले अच्छा तुम्हारे स्कूल के कोई 2 सीनियर मोस्ट ऑफिसर के नाम बता जो सर्विंग है। और उस भाई को पता ही नहीं था, मतलब ही वाज, मतलब कहता सर याद नहीं है। तो ऑल्दो ही वाज नॉट, ही एक्चुअली इज वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन। तो व्हाट लर्निंग इज हेयर फॉर अस कि मतलब if you're from Sainik School, you're from military school, and it is very important that you must be aware who are the serving senior officers. And obviously, if somebody is retired, also you should know at least दो चार नाम तो पता होना चाहिए. Nobody is asking you लेफ्टिनेंट साहब राइट कि लेफ्टिनेंट कौन कौन है, तो बहुत सारे होंगे, बट एटलीस्ट जो सीनियर मोस्ट टॉप नॉच ऑफिसर्स हैं तो उनका पता होना चाहिए, बिकॉज दे आर फ्रॉम योर फैमिली. इट इज ऑल योर सेल्फ अवेयरनेस, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. Ultimately, your school is not just a school; it is a family, right? Although every school is a family, but yes, any school, military school, or any other boarding school, you people have got a different level of bonding and all. तो आपको पता होना चाहिए, right? Although क्षितिज रिकमेंड हुआ था, यहाँ पर भी एक मजे की चीज अब फिर अगली लर्निंग और आती है, वो ये कि बेस्ट पार्ट ऑफ एसएसबी इज दैट इट इज अ क्यूमुलेटिव असेसमेंट, राइट? अगर क्षितिज इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, आप बोल रहे हो सर रिकमेंड तो भी हो गया, आप बोल रहे हो पहुंच गया और ठीक है, इट्स अ क्यूमुलेटिव असेसमेंट, राइट? अगर यहाँ कहीं अड़ा तो कहीं और दूसरी जगह अच्छा कर दिया होगा, राइट? ब्यूटी ऑफ एसएसबी इज दैट इट गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस टू प्रूव योरसेल्फ एंड शोकेस योर क्वालिटी. मतलब if you perform excellent in a particular task does not mean you're out of the, you're for sure gonna get recommended. If you perform worst in a specific task also doesn't guarantee you're out of the game. Your game will still be there till the conference, right? ये बहुत खूबसूरत चीज है एसएसबी की जो मेरे को लगती है, राइट? अच्छा कुशाग्र, एक चीज बता यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिविल बैकग्राउंड से हैं, मेरे को भी टच में आते हैं. दे कीप आस्किंग मी फॉर एनडीए रिटन एग्जाम प्रिपरेशन, और everybody cannot afford to go to some big coachings and spend some 30 40 50,000 rupees for the written exam. Although जो कर सकते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकते या जो कर सकते हैं उनके साथ भी धोखा क्या होता है, पैसे तो लोग ले लेते हैं बट द क्वालिटी इज नॉट गिवन, राइट? What will be your advice or suggestion for the people who have entered in 12th or will be giving NDA at some point of time कि रिटर्न के लिए कैसे करना चाहिए? All your point of view on that. सर बेसिकली आई वुड से कि एग्जाम को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें, जो मतलब वो होता भी है कि फर्स्ट पार्ट इज मैथ्स एंड द सेकंड पार्ट इज जनरल एबिलिटी. सो अगर कोई मैथ्स में टारगेट करे कि मैं 100 मतलब 120 का अप्रोक्स या 100 प्लस भी अगर मार्क्स लेकर आऊं, सो दैट इज वेल इन गुड. उतने मार्क्स हों तो काफी सही है. सो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी कि मुझे किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है. So first of all, go for at least 100 marks in maths, and then in the GAT section target the section of science. क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है उसमें. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ 11th और 12th लेवल या उससे भी नीचे के 9th और 10th. सो इन इंग्लिश दैट भी हो सकता है, ऐसी इंग्लिश भी तो 200 का. और इंग्लिश का मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक्स हैं दे आर लिमिटेड अराउंड 7 to 10 टॉपिक्स. तो व्हाट अबाउट इंग्लिश? सर मैं जस्ट सर कमिंग आस्किंग टू दो. इंग्लिश. एंड हाँ, सर इंग्लिश में आउट ऑफ 200 120 मार्क्स आर ऑफ वोकैबुलरी. और वोकैबुलरी भी मतलब ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही रैंडम हो. उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम पीवाईक्यूज. नहीं तो अच्छा. जो यूट्यूब में जो काफी सारे ऐसे चैनल्स है, जैसे आई वुड नेम सम लाइक डिफेंस वाला और लर्न विद सुमित, या फिर एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर्स. कौन सा, तो एक बार दोबारा ऐसे बताना. डिफेंस वाला, देन देयर इज लर्न विद सुमित, एंड देयर इज एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर्स. तो इन चैनल्स में फ्रीक्वेंटली वोकैबुलरी की वीडियोस आती है. तो वो लोग काफी ज्यादा जो मतलब पोर्शन है वोकैबुलरी का जो एग्जाम में आता है उसको कवर कर लेते हैं. सो आई वुड से इन इंग्लिश गो फॉर दैट वोकैबुलरी पार्ट. 120 में से आई थिंक 60 to 70 मार्क्स तो एटलीस्ट कोई भी गारंटी कर ही सकता है अगर उसने थोड़ी बहुत भी वोकैब पढ़ी हो. और अगर अच्छे लेवल पे पढ़ी हो तो देन आई वुड से एटलीस्ट 100 आउट ऑफ 120 इज अचीवेबल. एंड देन 40 मार्क्स आर ऑफ जस्ट रीअरेंजिंग इन इंग्लिश. मतलब उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, जम्बल्ड होते हैं, उसको रीअरेंज करके सेंटेंस बनाना होता है. सो दैट इज अ फ्री 40 में से 40 मार्क्स उसमें सीधे. So this brings the total of English to about 120 or 130 out of 200. So if you score about 100 in mathematics, 120 or 13 in English, and about 150 marks in science portion, so this takes a total to 370 to 380.
सो दिस इज आई थिंक अ सेफ साइड। तो अगर कोई इस हिसाब से अगर प्रिपरेशन करे तो काफी ज्यादा मतलब चांसेस हैं रिटर्न क्लियर करने की, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि जो जीएस वाला पार्ट होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट, उसमें मतलब बहुत ज्यादा ही अंदर तक घुस जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं, और उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कभी यूपीएससी वाले मतलब कभी मॉडर्न हिस्ट्री दे देते हैं, कभी जो मिडिवल हिस्ट्री होती है वो दे देते हैं, कभी बिल्कुल जो पुरानी वाली हिस्ट्री होती है वो दे देते हैं। तो दैट इज नॉट अ फिक्स पैटर्न। सो उस पे ना जाने के मतलब उसमें ना जाके इफ समबडी गोस फॉर द साइंस पोर्शन, दैट इज आई थिंक वेरी गुड। उसके अलावा यूट्यूब मतलब जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, देन द चैनल ऑफ यूट्यूब दे आर जेन्युइनली वेरी गुड, क्योंकि मैंने भी काफी मतलब जब भी कोई डाउट वगैरह होता था या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक होता था जो समझ नहीं आया, तो मैंने भी वो यूट्यूब से ही पढ़ा है। सो आई थिंक वन कैन गो फॉर यूट्यूब वीडियोज एज वेल। यार मैं तो लोगों को बोलता हूँ यार कि हर एक लड़के की दो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए और हर लड़की की दो बॉयफ्रेंड होने चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st century, राइट? और I personally believe that girlfriend and boyfriend has to be mandatory, I mean, not mandatory, I'll say, but yes, still, वो Google और YouTube जरूर होना चाहिए. They will never ditch you, right? It is Yes. a knowledge of ocean, right? And the companies like Geo and so many other companies has already ensured that the prices of internet will be affordable for everyone. So why not to utilize? In fact, मेरे को लगता है now we are living in an era of internet, right? बढ़िया स्पीड 5G, आजकल तो लोग दौड़ा रहे हैं 5G आ गया ना, आजकल क्या चल रहा है 5G वाईजी की हाँ पानी भी बड़ा। तो बढ़िया दो गर्लफ्रेंड और दो बॉयफ्रेंड अपना गूगल यूट्यूब होना चाहिए यार। मतलब ठीक है, लोग कहते हैं कि कुछ चैनल फेक भी है, अरे मान लेते हैं फेक है, पर 10 में से दो भी अगर आपके काम के निकले तो फ्री में यार, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, राइट? तो मतलब इट इज समथिंग दैट one should definitely use it, right? So that's indeed, good input what I would like to say, because लोगों को लगता है कि यार हम रिटर्न कैसे करें। और मोर ओवर आई हैव सीन यार, लोग अभी, आई विल नॉट टेक अ नेम ऑफ समबडी, आई गॉट टू नो 1,10,000 रुपए किसी कोचिंग वाले ने लिए रिटर्न एग्जाम के। मैंने उससे पूछा कितने लोग तुम्हारे यहाँ क्लियर हुए, बोले हमारे यहाँ 80 आउट ऑफ मतलब 3। दैट वाज सरप्राइजिंग यार। एंड आई सेड यार बाकियों का क्या, बोले यार वो पढ़े ही नहीं। तो मैंने कहा फिर आपने पैसे किस चीज के लिए थे, मतलब आप मजाक कर रहे थे? एंड दे डिडंट हैव एनी आंसर। तो वो बेचारे जो 77 का नहीं हुआ, कितनों ने पता नहीं कहाँ से लोन लिया हुआ, क्या किया होगा। तो आई एम श्योर इफ यू हैव टू ऑल, यू हैव हर्ड टू दी कुशाग्र, तो आई वांट यू पीपल आल्सो ट्राई आउट दिस स्ट्रेटजी यार, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल। कुशाग्र एक और चीज, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट, बिकॉज आई रिमेम्बर जब व्हेन यू वर रिकमेंडेड, तो मैंने जो मैसेजेस सर्कुलेट किए थे, somebody replied that in one of the WhatsApp groups कि सैनिक स्कूल वाले तो ऐसे ही रिकमेंड हो जाते हैं, he was from सैनिक स्कूल, that's why he got recommended. So people even have a myth that if you're from सैनिक स्कूल or military school, so they get recommended or they are getting some advantage, or not advantage, I'll say, people को लगता, लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे ही रिकमेंड हो जाते हैं, तो रिकमेंड हो ही जाएंगे, आ गए मतलब। Although what I have seen, traveling to so many Sainik schools, that even if you're from Sainik school, you have to perform. In fact, expectations are always high from them in terms of service knowledge and XYZ, right? So, what you would like to tell people about that, है ना? Because मैं तो सिंपल कहता हूँ यार कि अगर ऐसा ही होता कि सैनिक स्कूल के बच्चे को एडवांटेज दे रहे हैं, तो अगर 20 पीपल हैव क्लियर द रिटन एग्जाम, तो 20 में से एटलीस्ट 15-17 तो रिकमेंड होने चाहिए ऐसे, जबकि होता नहीं है, राइट? योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? सर, आई थिंक इट इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, क्योंकि अगर मतलब सही में अगर ऐसा होता तो जैसे हमारे भी 40 का रिटर्न हुआ था, लेकिन of those 40 only 17 could get recommended. And contrary, हमेशा मतलब सैनिक स्कूल वालों से एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा हाई रहती है, लाइक रिगार्डिंग डिफेंस नॉलेज, रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्कूल, अबाउट योर स्कूल सीनियर्स, एवरीथिंग अबाउट मतलब हर चीज के बारे में। The only benefit of going into a sainik school is that you get that environment, you get the resources जिनको मतलब अगर तुमने utilize करा, if you have utilized those resources in a very good manner over the 4 years or 7 years of your stay, so the probability of getting recommended gets a bit higher compared to a public school or a civil school जहाँ पे मतलब resources comparatively काफी कम होते हैं। तो this is the biggest advantage of सैनिक स्कूल कि अगर कोई वहां पर जाके मेहनत करता है तो
then the chances are very high. But this misconception कि यार किसी सैनिक स्कूल वाले का रिटर्न हो गया, so this is I think a very big lie. क्योंकि मेरे साथ भी SSB में I think of the 29 screenings there were 9 from Sainik schools, and uh, only two of us could get recommended. Rest 7 were conference out. Other was from which Sainik school? Sainik school Nalanda, and he was a repeater. Achha. So that's indeed very good to have interaction with you. And I am extremely proud that, for NDA150 course, my 17 students have got recommended out of total 24 trained. And out of them, Kushagra Durgapal is all India rank 2. So even it is a proud moment for us also. And I wish you a very good luck, Kushagra. My regards to your parents, because, parents support their struggle, their, effort in context of upbringing or any kind of support, right? That is absolutely, cannot be matched with anything. मतलब वो तो beyond limits वाली चीज है, right? So they are actually the biggest contributor in your success, what I feel, right? Give my regards to them and keep rising in the competitions during NDA, during your training in NDA, subsequently in the service also, right? I pray to God that in the whites you keep, soaring high, right? And wish you a good luck, right? Keep the flag of Sainik School Ghorakhal up, right? And we'll meet soon someday in your first time break. इस बार तो मैं आ नहीं पाया, पक्का next time I'll make out a plan to come Nainital, right? In fact, Nainital commander is also a naval officer. I closely know him. We are very closely connected. The Commodore B.R. Singh, right? So once again, a good luck to you all, and keep inspiring people around you whenever you come across some aspirants or anyone, right? All the best. Thank you, sir. Not only for the wishes but the support that you gave throughout the journey. क्योंकि whenever we go to a coaching, तो rarely it happens कि वो personal support या वो personal guidance किसी को मिल पाती है. Like when we were in SSB, so at that time too, I used to call you after every day in the evening. So that used to act as a very big moral support. और पता भी रहता था कि हाँ चलो इस हिसाब से मेरी SSB जा रही है, तो अब मुझे अगले दिन हर टास्क में इस तरह से परफॉर्म करना है. सो दैट वाज आई थिंक अ वेरी बिग प्लस फॉर मी कि आई हैड समवन टू हुम आई कुड शेयर एवरी डे कि यार आज मेरे टास्क कैसे गए और कल मुझे क्या करना है. सो दैट वाज आई थिंक अ वेरी वेरी बिग हेल्प फ्रॉम यू सर. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. और अगर कोई भी फ्यूचर में प्रिपेयर कर रहा है एसएसबी के लिए, सो आई वुड सजेस्ट गोइंग टू अंकितपाल सर इन इंदौर. इट इज इन द सेंटर ऑफ इंडिया, so from all 4 directions it is equally accessible, so and it is affordable at the same time as well. So I would suggest, if you have time, then you can check out for Ankitpal sir as well. Thank you, sir. All the best. Thanks.